वेलकम टू फार्मा डिजिटल। एंड आज हम इस वीडियो में ब्लड ग्रुपिंग के बारे में डिटेल्स डिस्कस करेंगे और ब्लड जो कैसे ट्रांसफ्यूज होता है, मीन्स एक इंसान से और एक दूसरे इंसान में ब्लड मैच करके कैसे वो ट्रांसफ़र किया जाता है उसके बारे में डिटेल्स डिस्क्रिप्शन करेंगे। एज यू नो, ह्यूमन ब्लड सेल आर ऑफ 3 टाइप्स। वन इज RBC, second one is WBC, and third one is platelets. So the human RBC contain a variety of blood group specific antigen, and this antigen is called as agglutinogen. Means RBC contain a specific type of antigens, that's name is called as agglutinogen, and these agglutinogen are helps for the determination of the different blood groups of the human blood have. And this grouping of blood is mainly consist of or mainly carried out by the two process. One is ABO blood group and second one is RS factor. So in ABO blood group we have to first determine the individual have A group, individual have which type of blood group, and in second phase, that is RS factor, we have to determine their positive or negative of the blood group. So first we briefly describe about the ABO blood group. As you know, the human blood are basically consist of 4 major blood groups, that is A, B and AB and O blood group. And this grouping of blood is first discovered by Carl Landsteiner, and in which decade, that is the 1900. And Carl Landsteiner discovered the blood group A, B and O. Means out of these 4 blood group, this Carl Landsteiner discovered the A, B and O type of blood group, and another remaining AB group, and it is discovered by the De Castillo and Starley. These both discovered the AB blood group. So as we know, basically 4 types of blood group of human blood are present, that is O, A and OA, AB and B group, and that's also contain their RS factor like positive and negative. So overall 4 blood group and their 2 RS factor. That's why it completely human blood consists of 4 types of blood group, that is O negative, that is O negative, O positive, A negative, A positive, B negative, B positive, and AB negative and AB positive. Means these are the 8 types of blood groups that human blood have. And in first definition we already described that human RBC contain a specific substance or specific type of antigen, that is called as agglutinogen, which helps for the determination of the blood group. And that contain human RBC contain basically 2 types of antigen or agglutinogen, that is A and B, and that present in RBC, and some suitable antibodies are also present, and that is present in their blood plasma, and that antibody is called as agglutinins. Means यहाँ पे देखो ब्लड में जो एग्लूटिनोजेन पाए जाते हैं, आरबीसी में एंटीजन पाए जाते हैं उसे एग्लूटिनोजेन बोलते हैं, और जो एंटीबॉडी पाए जाते हैं प्लाज्मा में उसे बोलते हैं एग्लूटिनिन। एंड यहाँ पे देखो आरबीसी में 2 एंटीजन पाए जाते हैं जो कि उसका नाम है A एंड B, वैसे ही 2 एंटीबॉडीज पाए जाते हैं प्लाज्मा में, उसे बोलते हैं अल्फा और एंटी ए और बीटा और एंटी बी। मीन्स ये एंटीजन एंड एंटीबॉडी हो गया ब्लड सेल का। एंड यहाँ पे देखो जो क्लॉम्पिंग होता है, क्लॉम्पिंग मीन्स जैसे इस टाइप का, मीन्स ऐसे जैसे कि दूध फट जाता है उस टाइप का एक स्ट्रक्चर होगा, मतलब जो ऐसे इकट्ठा सेल लग के एक स्ट्रक्चर पैदा करेगा, तो उसे बोलते हैं क्लॉम्पिंग, एंड दैट इज कॉल्ड एज एग्लूटिनेशन इन टेक्निकल टर्म। तो यहाँ पे देखो जब भी ये एग्लूटिनिन और एग्लूटिनोजेन ये रिएक्शन करेगा तो ये एग्लूटिनेशन और क्लॉम्पिंग प्रोसेस जो है होगा। और ये क्या है वो आगे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, समझ जाओगे अच्छे तरीके से। एंड द एग्लूटिनिन मीन्स जो एंटीबॉडी एग्लूटिनोजेन ए मीन्स एंटीजन ए के साथ रिएक्ट करेगा वो है एंटी ए, एंड जो एंटीबॉडी और एग्लूटिनिन एंटीजन बी और एग्लूटिनोजन बी के साथ रिएक्ट करेगा वो है एंटी बी।
मीन्स जैसे कि मैंने बोला कि एग्लूटिनेशन जो है वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के साथ ही होता है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्ट होके एक रिएक्शन दिखाते हैं, वो होता है एंटीजन एग्लूटिनेशन। तो यहाँ पे देखो जिस इंडिविजुअल का ग्रुप ए है, जिस इंडिविजुअल का भी ग्रुप ए है, तो उसमें क्या पाए जाते हैं, एंटीजन ए और एग्लूटिनोजन ए एंड एंटीबॉडी बी एंड एग्लूटिनिन बीटा, मीन्स ये जो है पाए जाते हैं। एंड जिसका ग्रुप बी कॉन्टेन है तो उसमें क्या पाए जाते हैं, एंटीजन बी और एग्लूटिनोजन बी एंड एग्लूटिनिन अल्फा और एंटी ए, ये जो है पाए जाते हैं। यहाँ पे देखो एग्लूटिनोजन एंड एग्लूटिनिन में यहाँ पे डिफरेंशिएट हो रहा है ब्लड ग्रुपिंग में, मीन्स ए में रहता है एग्लूटिनोजन ए एंड एग्लूटिनिन बीटा और एंटी बी भी लिख सकते हो यहाँ पे। एंड वैसे ही ग्रुप बी में रहता है एग्लूटिनोजन बी एंड एग्लूटिनिन अल्फा। एंड वैसे ही जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें एंटीजन ए एंड बी दो टाइप का एंटीजन जो आरबीसी में पाए जाते हैं वो रहता है, और उसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी जो है वो यहाँ पे पाए नहीं जाते। वैसे ही ग्रुप ए में एग्लूटिनोजन जो कि एंटीजन है वो नहीं पाए जाते हैं ब्लड आरबीसी में। एंड अल्फा बीटा और एंटी ए और एंटी बी एग्लूटिनिन और एंटीबॉडी जो है उसके प्लाज्मा में पाए जाते हैं। यहाँ पे इस पिक्चर पे आप देख सकते हो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए, यहाँ पे देख सकते हो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी एंड ग्रुप ओ। ग्रुप ए में जैसे कि मैंने बताया था कि एंटी बी एंटीबॉडीज रहता है और ए एंटीजन रहता है, ये एंटी बी को हम बीटा बी कंसिडर करते हैं। वैसे ही ग्रुप बी में एंटी ए एंटीबॉडी रहता है प्लाज्मा में एंड एंटीजन जो है वो बी एंटीजन रहता है। वैसे ही ग्रुप बी में कोई भी एंटीबॉडी उसके प्लाज्मा में पाए नहीं जाते एंड एंटीजन ए एंड बी उसके जो रेड ब्लड सेल है और आरबीसी में जो है पाए जाते हैं। वैसे ही ग्रुप ओ में एंटीबॉडी जो ए एंड एंटीबॉडी बी दो पाए जाते हैं और कोई भी एंटीजन जो है रेड ब्लड सेल में नहीं पाए जाते। एंड यहाँ पे इस पिक्चर पे आप देख सकते हो कि जो 8 टाइप्स ऑफ ब्लड है उसमें से कौन सा जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है और कौन सा जो है वो बहुत कम मात्रा में और बहुत कम फ्रीक्वेंसी जो है वो पाए जाते हैं। टोटल में यहाँ पे 7 देख सकते हो जो ओ पॉजिटिव है वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और बहुत ही रेयर जो है वो है ए बी नेगेटिव जो है लगभग 1 से 2% ऑल ओवर द इंडिया जो है वो पाए जाते हैं। तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि 4 ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी एंड ओ कैसे मतलब ह्यूमन ब्लड में पाए जाते हैं और उसे कैसे हम डिटरमाइन करते हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड दिस कैन बी डिटरमाइंड बाय मिक्सिंग ए ड्रॉप ऑफ ब्लड विथ ए ड्रॉप ऑफ सेरम ए एंड सेरम बी सेपरेटली, मीन्स 2 केमिकल यूज किए जाते हैं सेरम ए एंड सेरम बी सेपरेटली ऑन ए ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व वेदर द एग्लूटिनेशंस ऑकर्स और नॉट। यहाँ पे देखो एग्लूटिनेशन मीन्स जो एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है यहाँ पे हो रहा है या नहीं, यहाँ पे नोटिस करेंगे। यहाँ पे देखो यहाँ पे ए बी दोनों में हम 2 स्लाइड ले चुके हैं, उसमें अगर दोनों में यहाँ पे ब्लड जो है ब्लड सैंपल जो है हमने दिया एंड उसके बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे एंटी सेरा ए और सेरम ए एंड यहाँ पे हम ऐड करेंगे एंटी सेरा बी और सेरम बी एंड ये सेरम में क्या रहता है एंटीबॉडीज। जैसे कि मैंने बोला था कि ब्लड सेल में जो है वो एंटीजन पाए जाते हैं और ये एंटीजन एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन होके ही ये एग्लूटिनेशन रिएक्शन दिखाता है। तो यहाँ पे हमें एग्लूटिनेशन हो रहा है या नहीं यहाँ पे नोटिस करना है। तो यहाँ पे देखो अगर ए वाली स्लाइड में एग्लूटिनेशन हुआ तो वो ब्लड ग्रुप हो जाता है ए ब्लड ग्रुप, और अगर बी वाले स्लाइड में एग्लूटिनेशन हुआ तो वो हो जाता है बी ब्लड ग्रुप। वैसे ही अगर 2 स्लाइड में ही एग्लूटिनेशन हुआ है ए एंड बी में तो वो हो जाता है ए बी ब्लड ग्रुप एंड ओ ए एंड बी दोनों में कहीं भी एग्लूटिनेशन नहीं हो रहा है तो वो हो जाता है ओ पॉजिटिव। मीन्स यहाँ पे देखो पहले हम क्या कर रहे हैं, 2 जो ब्लड सैंपल ले रहे हैं अलग अलग स्लाइड में यहाँ पे ब्लड सैंपल ले रहे हैं तो एक में दे रहे हैं एंटी सेरम ए
केमिकल्स एंड दूसरा जो दे रहे हैं सेरम बी और एंटी बी। यहाँ पे आरबीसी में एंटीजन पाए जाते हैं और ये जो केमिकल है और सेरम है उसमें एंटीबॉडी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखो सिंपल, ये एंटीबॉडी केमिकल में होने की वजह से ये आरबीसी के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे अगर ए वाले स्लाइड में अगर रिएक्ट हुआ तो वो हो जाता है ए पॉजिटिव, बी में दूसरे स्लाइड में रिएक्ट हुआ तो वो हो जाता है बी पॉजिटिव, एंड दोनों में रिएक्ट हुआ तो वो हो जाता है ए बी पॉजिटिव, एंड किसी भी रिएक्शन नहीं दिखाया तो वो हो जाता है ओ ब्लड ग्रुप। तो हमने तो जान लिया कि ब्लड ग्रुप कैसे डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट आते हैं उसका नेगेटिविटी और उसका जो पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो कैसे डिटरमाइन करते हैं। और वो पॉजिटिव और नेगेटिव डिटरमाइन जो करते हैं उसे बोलते हैं आरएस फैक्टर्स। मीन्स हम जब बोलते हैं कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है, ए पॉजिटिव है, मीन्स ए जो है हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप में अंडर में आ गया और जो पॉजिटिव है वो आ गया आरएस फैक्टर के अंडर में। एंड इट इज also called as rhesus factor because it is first identified from the rhesus species of monkeys RBC, and RS positive individual have these factors and agglutination, and but the RS negative person don't have this type of reaction. And RS system, as you know, it can be maybe two types of result, one is negative or positive, and out of which 85% of the people have agglutination, means a reaction occurs, and that person is considered as a RS positive individual, and remaining 15% in their blood there is no agglutination occurs, and that is called as RS negative. And here in this case of RS factor, the RS antigen is called as D. In that case, in case of RBC, that is called as A and B, and that is also called as agglutinogen, and here it is considered as a capital D, and their antibody is called as anti D. तो यहाँ पे देखो जब हम कंप्लीटली एक इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करते हैं तो ऐसे ही 4 स्लाइड में ब्लड सैंपल जो है वो लिया जाता है। अगर यहाँ पे देखो जैसे कि मैंने बताया था एबीओ ब्लड ग्रुप में 2 जो सैंपल लिए जाते हैं, एक है एंटी ए, एक दूसरे में एंटी बी केमिकल दिया जाता है। वैसे ही तीसरे ब्लड सैंपल में एंटी डी केमिकल्स जो है वो दिए जाते हैं, और चौथा जो है वो ऐसे सिंपल ब्लड जो सैंपल है उसमें रखा जाता है, कोई भी केमिकल्स यहाँ पे ऐड नहीं किए जाते। तो ओ पॉजिटिव में क्या होगा, यहाँ पे देखो जो एंटी डी वाला जो ग्लास स्लाइड है उसमें रिएक्शन होगा, यहाँ पे ये हो जाता है ओ पॉजिटिव। वैसे ही ओ नेगेटिव में कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाएगा, अगर चारों का चारों स्लाइड यहाँ पे कुछ भी एग्लूटिनेशन नहीं दिखा रहा है तो वो हो जाता है ओ नेगेटिव। वैसे ही ए वाले एंटी ए वाले ग्लास स्लाइड में जो केमिकल्स दिए थे अगर वहाँ पे रिएक्शन हुआ तो वो हो जाता है ए पॉजिटिव, और ये एंटी ए वाला स्लाइड और एंटी डी वाला स्लाइड अगर रिएक्शन दिखा रहा है तो वो हो जाता है पॉजिटिव। एंड सिर्फ ए वाले सेक्शन में अगर रिएक्शन दिखा रहा है तो ये हो जाता है ए नेगेटिव। एंड यहाँ पे अगर देखो सेम वैसे ही बी वाले स्लाइड में रिएक्शन दिखा रहा है तो यहाँ पे बी पॉजिटिव हो गया, और बी वाले स्लाइड में यहाँ पे देखो बी पॉजिटिव में क्या हो रहा है, एंटी बी वाले सेक्शंस और एंटी डी जो केमिकल्स ऐड किए थे जो 2 स्लाइड अगर रिएक्शन दिखा रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव। तो यहाँ पे सिंपल कंसिडर करो, जिस अगर रिएक्शन दिखा रहा है एग्लूटिनेशन हो रहा है तो उसे हम पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं। वैसे ही बी नेगेटिव में क्या होगा, एंटी बी वाला सेक्शन एग्लूटिनेट होगा, एंटी डी वाला सेक्शन कुछ भी रिएक्शन नहीं दिखाएगा यहाँ पे। वैसे ही ए बी पॉजिटिव में क्या होगा, ए वाले सेक्शन बी वाले सेक्शंस और एंटी डी वाले केमिकल सेक्शन में भी ये एग्लूटिनेशन जो है वो कराएगा। ए बी नेगेटिव में क्या होगा, ए में होगा, बी में एग्लूटिनेशन होगा एंटी बी वाले केमिकल सेक्शन में, एंटी डी में नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आरएस फैक्टर जो है नहीं पाए जाते। और अगर जो हम एक्स्ट्रा कंट्रोल सैंपल ले रहे हैं, क्योंकि ये जो है एक प्रोसीजर है तो कभी ये टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, तो अगर यहाँ पे 4 सेक्शंस एंटी ए वाले सेक्शन, बी वाले सेक्शन, एंटी डी वाले स्लाइड और कंट्रोल वाला स्लाइड भी अगर एग्लूटिनेटेड हो गया तो उस टेस्ट को हम इनवैलिड मानते हैं और दोबारा टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। And next we will briefly discuss about the blood transfusion, means how the blood is transfused or
transfer from one person to another person, and this technique is first developed by the James Blundell. Means the James Blundell is considered as a father of blood transfusion, and group A and group B person can only safely receive blood from their own group, and also this individual receive the blood from the group O. Like that, the persons having group AB blood group, they receive blood from their own types, and they receive blood from their any types of blood group, means A, B, AB or O, means all 4 types of categories. From these 4 categories, this AB individual can easily receive blood, and that's why it is also called as universal blood recipient group. Like that, person O blood group donate blood to any types of blood group, that's why it is also called as universal blood donor. Means here one very much important point is considered that a RS positive individual receive blood from both RS positive and RS negative individual, but in case of RS negative, they receive blood only from the RS negative people. Means if A positive blood group individual require blood, they receive blood from both A positive and A negative. But in case of a individual have A negative blood groups and they require blood, or they receive the blood from only A negative blood group, means he is not compatible with the A positive blood group due to their this RS factor. तो मान लो ये जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है एक डोनर और एक रिसिपिएंट की, मीन्स एक ब्लड दे रहा है और एक रिसीव कर रहा है, तो अगर इन दैट केस इनकॉम्पेटिबल हो गया, मीन्स मैचिंग नहीं हुआ, तो बहुत ज़्यादा खतरा जो है हमें हो सकता है। शॉक मीन्स ऑक्सीजन की कमी हमारे बॉडी में हो सकता है, रीनल फेल्यूर मीन्स किडनी फेल्यूर हो सकता है, और कुछ बार जो है हमें जो मरने का कारण और डेथ का जो रीजन है वो भी बन सकता है। तो इसे हम कैसे ओवरकम करेंगे? क्रॉस मैचिंग ऑफ द रिसिपिएंट एंड डोनर ब्लड। और क्रॉस मैचिंग कैसे करते हैं यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो मान लो तुम्हारे पास टाइम नहीं है और तुम्हें जल्दी ही ब्लड चाहिए, तो उस केस में हम ओ नेगेटिव ब्लड को कंसिडर कर सकते हैं कंफर्टेबल और कंपैटिबल के हिसाब से, क्योंकि दिस ओ नेगेटिव इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल ब्लड डोनर। मीन्स ये ओ नेगेटिव इंडिविजुअल जो है वो किसी को भी ब्लड जो है किसी भी टाइप के ब्लड ग्रुप के इंसान को जो वो ब्लड दे सकता है। सिंपली जैसे कि हम बहुत किताबों में पढ़ा था कि ओ पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप जो है उसे हम यूनिवर्सल ब्लड डोनर मानते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली देखा जाए तो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप को ही हम यूनिवर्सल ब्लड डोनर मानते हैं। तो एक टर्म आता है क्रॉस मैचिंग। क्रॉस मैचिंग मीन्स यहाँ पे इट इज़ द प्रोसेस बाय मिक्सिंग ए सिंपल ऑफ रिसिपिएंट ब्लड विथ ए सिंपल ऑफ डोनर blood and check the mixture is agglutinated or not. If it is agglutinated, that blood is not to be ट्रांसफ्यूज। मीन्स एग्लूटिनेशन में यहाँ पे देखो जो ब्लड ले रहा है उसका कुछ सैंपल और जो ब्लड दे रहा है उसका कुछ सैंपल, उन दोनों का सैंपल लेके हम कुछ टाइम देखेंगे कि वहाँ पे एग्लूटिनेशन और रिएक्शन हो रहा है या नहीं। अगर एग्लूटिनेशन और रिएक्शन कुछ दिखाई देगा तो हम उस ब्लड ग्रुप को और उस दो इंडिविजुअल में ब्लड ट्रांसफ्यूजिंग प्रोसेस को हम जो इनकॉम्पैटिबल मानेंगे। और जो ब्लड सैंपल रहता है उसमें एक बारकोड दिया जाता है और उस बारकोड सिस्टम का नाम है ISBT 128। ISBT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये ब्लड पाउच का बारकोड है ISBT 128। यहाँ पे एक पिक्चर के मदद से हम देख सकते हैं कि किस इंसान जो है वो किसे ब्लड दे सकता है। यहाँ पे देखो जो ए ग्रुप वाला इंसान है वो ए ब्लड ग्रुप से और खुद का जो ए ग्रुप है उससे ब्लड जो है वो ले सकता है। वैसे ही ए बी इंसान जो है वो ए के साथ ए से ब्लड ले सकता है, ओ के साथ भी ब्लड ले सकता है, बी के साथ भी बी से भी वो ब्लड ले सकता है और अपना जो खुद का ब्लड ग्रुप है ए बी से उसे भी ले सकता है। तो दैट्स वाई ए बी ग्रुप इज कंसिडर एज ए यूनिवर्सल ब्लड रिसिपिएंट। वैसे ही यहाँ पे जो बी ग्रुप है वो क्या करेगा, यहाँ पे ओ से ब्लड ले सकता है और जो खुद का जो ग्रुप है उस बी ग्रुप है उसमें से भी ये ब्लड ले सकता है।
यहाँ पे देखो इस चार्ट में साफ तरीके से दिखाई दिया है कि और साफ तरीके से मेंशन किया गया है कि डिटेल्सली कि कौन सा ब्लड ग्रुप जो है वो किसे ब्लड दे सकता है और किससे वो जो है रिसीव कर सकता है। तो ये नोट करना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हो। वैसे ही इस पिक्चर में भी आप लोग देख सकते हो कि अगर पेरेंट्स में से जो पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप किया है तो उनके जो बच्चे हैं, जो बच्चे पैदा होंगे और उनका जो चिल्ड्रन है उनका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है और पॉसिबल ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। यहाँ पे देखो दोनों पेरेंट्स में से अगर एक पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप जो है वो अगर ए है, दूसरा पेरेंट्स का भी ब्लड ग्रुप ए है, तो उनके जो बच्चे हैं और चिल्ड्रंस हैं उनका जो ब्लड ग्रुप है ए और ओ होने का चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है। वैसे ही पेरेंट्स ओ एंड ओ का जो बेबी का जो ब्लड टाइप्स है वो ओ रहने का चांसेस रहता है। यहाँ पे साफ तरीके से मेंशन किया गया है कि दोनों पेरेंट्स में से पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप क्या रहता है, तो जो बेबी का पॉसिबल ब्लड टाइप से क्या रह सकता है। तो इसका भी अगर नोट करना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके नोट्स कर सकते हो। And these are all about the blood transfusion and blood grouping process. If you have any kind of doubt, please register your comment in comment box. Have a good day. Thank you.